Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. मैं जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कुछ लोग नए हैं। आज हमारे साथ हैं ब्रजजनानंद प्रभु जी दुबई से हैं। वहाँ पे बहुत सेवा कर रहे हैं, काफ़ी सालों से इस्कॉन से जुड़े हैं और वहाँ पे कैंप्स में प्रभु प्रचार करते हैं। कई लोगों को कृष्ण भक्ति से जोड़ा है इन्होंने और कई बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छा प्रभु जी का क्लास होता है। तो आज के जो श्लोक हैं वो प्रभु जी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ओके, हरे कृष्णा, ओवर टू यू प्रजा। Yeah, Hare Krishna. 327, 11 and 12, right? Yeah, correct. Yeah, 11 and 12. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaiva Bhuttamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Tyam Bhagavata Sevaya Bhakti Naistiki Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guru Shri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Shri Guru Shri Yuta Patakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagar Jatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Shri Advaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Radha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanto Radha Kanto Namostutapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Vishwabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatu Vishwapa Sindhu Vevasha Patitanam Pavani Vishnavi Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Vitale Shrinte Niti Namni Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Vitale Srimate Bhakti Swami Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharine Nirvishesh Chaitanya Shitarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Om Karoti Vachanam Pangam Gayate Hare Yat Kripatamam Vande Shri Guru Dinapayam Paramanandam Shri Chaitanya Anand Leela Maya Vigrahaya Sundaraya Tasmai Mahaprema Sapradaya Shri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namo Shri Chaitanya Chandra तीसरा स्कंद 27 अध्याय 11 और 12 श्लोक मुक्तलिंगम सदाभासम असति प्रतिपद्यते ततो बंधुम असचक्षुः सर्वानुष्युतम अद्वयम मुक्तलिंगम सदाभासम असति प्रतिपद्यते ततो बंधुम असचक्षुः सर्वानुष्युतम अद्वयम। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। ट्रांसलेशन इंग्लिश में है। A liberated soul realizes the absolute personality of Godhead, who is transcendental and who is manifest as a reflection even in the false ego.
He is the support of the material cause and he enters into everything. He is absolute, one without a second, and he is the eyes of the illusionary. Opened. A pure devotee can see the presence of the Supreme Personality of God in everything material manifest. He is present, therefore, only as a reflection. But a pure devotee can realize that in the darkness of material illusion, the only light is the Supreme God. Who is its support? It is confirmed in Bhagavad Gita that the background of the material manifestation is Lord Krishna. And as confirmed in the Brahma Samhita, Krishna is the cause of all causes. In the Brahma Samhita, it is stated that the Supreme Lord, by his partial or plenary expansion, is present not only within the universe, but each and every universe, but in every atom, although he is one without a second. The word Advayam, without a second, which is used in this verse, indicates that although the Supreme Personality of God is represented in everything, including the atoms, he is not divided. His presence is explained in the next verse. So anyway, next verse की ओर भी चलते हैं, क्योंकि next verse इस श्लोक को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है कि एक जो मुक्त आत्मा है, जो शुद्ध प्रज्ञ है, जो शुद्ध भक्त है, वे भगवान कृष्ण को किस प्रकार से उनका अनुभव और उनका आत्मा साक्षात्कार किस प्रकार से भगवान के प्रति है, वो जो है इस भगवान के हर प्रतिबिंब को, भगवान के इस भौतिक जगत में जो भी उपस्थिति है उसमें देखते हैं। यहाँ पर जैसे कहा गया है, मैनिफेस्ट एज अ रिफ्लेक्शन इवन इन द फॉल्स ईगो, मिथ्य अहंकार में भी भगवान का जो है उस प्रतिबिंब को देखते हैं। ही इज द सपोर्ट, यानी भौतिक जगत का वो कारण है। वे सारे इस भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, परम सत्य है, उनके अलावा और दूसरा कोई नहीं है, वन विदाउट अ सेकेंड। एंड ही इज द आईज ऑफ द इल्यूजनरी, भौतिक जगत का जो भ्रमित शक्ति है, माया शक्ति, उसका वो भगवान उनके नेत्र है। हरे कृष्ण। तो इसको और स्पष्टता से अगले श्लोक में उदाहरण के माध्यम से, सूर्य को उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, तो उसको भी पढ़ते हैं। यथा जलास्था भासः स्थास्तेनावदर्शते स्वभासेन तथा सूर्यो जलास्तेन द्वितीभिः स्थितः। The presence of the Supreme Lord can be realized just as the sun is realized first as a reflection on सूर्य का किस प्रकार से हम लोग अनुभव करते हैं, हमें रियलाइजेशन होता है कि सूर्य उपस्थित है, इस प्रकार से प्रकाश के माध्यम से। यहाँ पर बताया गया है इज रिफ्लेक्शन ऑन वाटर, यानी जल के अगर नजदीक हम लोग है तो हम लोग देखते हैं कि जो भगवान का जो सूर्य का जो है वो प्रकाश उसमें दिखता है। एंड अगेन एज अ सेकंड रिफ्लेक्शन ऑन द वॉल ऑफ द रूम, अगर बैठे हैं तो मालूम पड़ता है कि आज सवेरे हुआ है, इस प्रकार से सूर्य की प्रकाश है। ऑल्दो द सन इटसेल्फ इज सिचुएटेड इन द स्काई, मगर सन अपने यहाँ से जो सूर्य है अपने नजदीक में नहीं है, बहुत दूर है, मगर हम लोग जान जाते हैं कि सूर्य प्रकट हुआ है, कैसे? उनके शक्ति के माध्यम से। शक्ति कौन सा है? प्रकाश और गर्मी। तो उसी तरह से भगवान का भी उसी तरह से जो लिबरेटेड सोल है, जो शुद्ध भक्त है, वो देख सकते हैं। थोड़ा परपट पढ़ते हैं, उसके बाद में थोड़ा साथ में चर्चा करें। The example given here with is perfect, यानी perfect example दिया गया कपिल देव मुनि। The sun is situated in the sky far, far above from the surface of the earth, but its reflection can be seen in a pot of water in a corner of a room. अगर भूमि के कोने में बैठे हैं तो अगर लोटा है तो लोटे में हम लोग सूर्य को देख सकते हैं। The room is dark and the sun is far, far away in the sky, but the sun's reflection on the water illuminates the darkness of the room. सूर्य का जो प्रकाश है वो पूरा प्रकाशित करता है रूम को। Pure devotee can realize the presence
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये 3-4 श्लोकों में कपिल मुनि देवहूति माता को जो मुक्त आत्मा है, जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, उसके ऊपर यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हर चीज में किस प्रकार से वो भगवान के उपस्थिति को देखते हैं। तो थोड़ा और पढ़ते हैं। A pure devotee can realize the presence of the Supreme Person in everything by the reflection of his energy. भगवान का जो एनर्जी है, शक्ति है, उसके माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। In the Vishnu Puran it is stated that as the presence of fire is understood by heat and light. विष्णु पुराण में कहा गया है कि कोई आग अगर कैसे मालूम पड़ता है, आग है, उसमें प्रकाश होता है और गर्मी उससे मालूम पड़ता है कि आग जल रही है। So the Supreme Personality of Godhead, although one without a second, is perceived everywhere by the diffusion of his different names. भगवान की विभिन्न विभिन्न शक्तियों के माध्यम से भगवान की उपस्थिति जान जाते हैं। कौन? मुक्त पुरुष है। This is confirmed in the Ishopanishad that the presence of the Lord is perceived everywhere by the liberated soul, just as the sunshine and the reflection can be perceived everywhere, although the sun is situated far away from the surface of the globe. भगवान तो अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं, फिर इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान उपस्थित नहीं है भौतिक जगत में। ब्रह्मा अपने ब्रह्म संहिता की प्रार्थना में कहते हैं, अंधांतरस्थ परमाणु चयंतरस्तम, परमाणु अणु के अणु में भगवान उपस्थित है परमात्मा के माध्यम से। चिरोदक्षय विष्णु विस्तार करते हैं परमात्मा और प्रकृति के हर अणु में भगवान विराजमान है। तो ब्रह्मा जी का ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना ऐसी वैसे प्रार्थना नहीं है, उसका अनुभव हुआ इसलिए वो प्रार्थना की। इसलिए ऐसे प्रार्थनाओं को जो हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, तब हम भगवान के और निकट हो जाते हैं। कि शुद्ध भक्तों का प्रार्थनाओं से ही, श्रवण के माध्यम से ही हमारा मन पवित्र होता है, मन रमन करता है। स्तोत्र मनोविरामात्, भव औषधात् स्तोत्र मनोविरामात्, ये भव सागर है। इस भव सागर में औषधि क्या है? स्तोत्र मनोविराम। ऐसा श्रवण करें जो मन को रमित करता है, आनंदित करता है। वो क्या है? वो सब ये सब प्रार्थना है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी अपने अनुभव से प्रार्थना करें। हर कण कण में भगवान उपस्थित है। कहते हैं ना डायलॉग, हर कण कण में भगवान। वैसे तो हिरण्यकशिपु भी जब हिरण्याक्ष का मृत्यु हुआ था तब उसने भी बहुत सारे ज्ञान दिए। तो एक ज्ञान होता है, विज्ञान होता है। ज्ञान को विज्ञान में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं? जब साधना भक्ति कुछ करें तब हो सकता है। और साधना भक्ति में श्रवण बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए ऐसे शुद्ध भक्तों का प्रार्थना को सुनना बहुत आवश्यक है। कपिल मुनि देवहूति माता को समझा रही बहुत साल पहले, हम लोग को भी तो उसके माध्यम से सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी के संवाद के अनुसार, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के संवाद के अनुसार, विदुर मैत्रेय के संवाद के अनुसार, उद्धव कृष्ण के संवाद के अनुसार, ये सब हमें शुद्ध भक्त की ओर, भगवान की ओर निकट हम लोग को लेके जा रहा है। ये सौभाग्य है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम का प्रातः काल सवेरे सुनना, श्रवण करना ये अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जैसे इस श्लोक में कहा गया है, 11 में चलते हैं वापस, मुक्तलिंगम सद आवासम असति प्रतिपद्यते। असति यहाँ पर है फॉल्स ईगो, असत है मिथ्या अहंकार। सच्चा अहंकार क्या है? कि हम लोग भगवान के भक्त हैं, दास हैं। ये है सच्चा अहंकार। अहंकार कोई निकाल नहीं सकता है, क्योंकि अहंकार का अर्थ है कि हम व्यक्ति हैं, वी आर एन इंडिविजुअल सोल। तो वो अहंकार का सूची है। बट कौन सा अहंकार? मिथ्या अहंकार नहीं, सच्चा अहंकार।
लोग पूछते हैं अहंकार को मिटाना चाहिए, इसका अर्थ ये क्या है? अहंकार को मिटा नहीं सकता कोई, मिथ्य अहंकार को मिटाना। मिथ्य अहंकार क्या है कि हम राजा हैं, हम भोगी हैं, ये आसुरिक गुण है, इसे कहा जाता है। तो हमें भक्त बनना है। भक्त का विचार क्या है? हम दासा दासानु दास, जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। तो ये है। तो यहाँ पर देखिए, एक लिबरेटेड सोल जो है, एक शुद्ध आत्मा, वो भगवान को मिथ्य अहंकार में भी देखते हैं। ऐसा कैसे? Who is manifest as a reflection even in the false ego, मिथ्य अहंकार में भी देखते हैं। कैसे देखते हैं? वे देखते हैं कि सभी जीव भगवान के, जो भी बद्ध जीव है, बद्ध जीव को मिथ्य अहंकार से जुड़ा जा सकता है। क्यों? कि मिथ्य अहंकार में व्यक्ति सोचता है कि मैं, ये शरीर मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मैं लंकेश, मैं रावण, रावण भी कह रहा था ना, मैं लंकेश। इस प्रकार से हम लोग भी कहते हैं, हम लोग के छोटे रूम में, कि मैं मालिक। तो ये है मिथ्य अहंकार। तो इसमें शुद्ध आत्मा कैसे देखते हैं? एक भगवान का हाथ किस तरह से देखते हैं, भगवान की उपस्थिति किस तरह से देखते हैं, कि वही मिथ्य अहंकार में वही जीव भगवान के अंश है। वे जानते नहीं वो बद्ध है, मुक्त नहीं है, बद्ध। ये बद्ध जीव का दृष्टिकोण, सब कुछ मेरा। और मुक्त आत्मा दृष्टिकोण क्या है? जब वो किसी को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं जो कंडीशनड है, जो बद्ध जीव है, उसको देखते हैं, ये भगवान के अंश है। ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये सनातन है, सनातन से बद्ध है। इसीलिए एक मुक्त आत्मा में प्रचार का एक भूख होती है कि वो दूसरों का उद्धार करे। इसीलिए उनको कहा गया है कि उनके हृदय में उदारता बहुत है। क्यों? कंपैशन बहुत है। क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बद्धजीव भी मुक्त आत्मा बन जाए। तो इसलिए उस मिथ्य अहंकार में भगवान के हाथ को देखते हैं। शुद्ध आत्मा, जब मिथ्य अहंकार, जब हम लोग के पास इस शरीर के माध्यम से हम लोग देखते हैं, केवल शरीर के माध्यम से नहीं, इस शरीर के माध्यम से जो सुख दुख, जो भी हम अनुभव करते हैं, जो भी हम लोग का अनुभव है, सुख दुख, लाभ, मान अपमान, ये सब कुछ जो है इस शरीर से जुड़ा है। और इसमें जब मिथ्या अहंकार बहुत तीव्र होता है, तब हमें बहुत इसमें चोट पहुंचती है। तो इसी बात को जब भगवान कृष्ण उद्धव को समझाते हैं, हमारे जो अवधूत ब्राह्मण के जो 11 स्कंद में अवधूत ब्राह्मण के इस इतिहास को बताते हैं, तो उसको तब जब बताते हैं, तब उसमें ये पॉइंट बताते हैं कि अवधूत ब्राह्मण जो थे वो बहुत ही धनी व्यक्ति थे, मगर समय के प्रभाव से वो सब कुछ क्षीण हो गया। सब उनके परिवारजन, गवर्नमेंट सब उनका धन को लेके आया, उनके पास कुछ नहीं रहा। फिर बाद में विचार करते रहे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसमें समय बीतने के बाद में वो को लगा कि ये सब अगर हुआ है तो समय की वजह से हुआ है, तो हम क्यों इसमें आसक्त रहे, तो वैरागी बने। और इस तरह से संन्यास उसने ग्रहण किया, रिनाउंशिएट हो गए वो। और जब वो रास्ते पे जाते तो लोग उनका बहिष्कार करते थे, उनका अपमान करते थे, मान अपमान सब होता था। तो बाहर के दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि ये सब मेरे दुश्मन है, मगर उनको जब भगवान कृष्ण की स्मरण हुआ, भगवान की भक्ति किए, तब उनका अनुभव में परिवर्तन हुआ। और वो क्या देखने लगे? वो ये देखने लगे कि मिथ्य अहंकार के माध्यम से जो मुझे ये शरीर मिला है,
और इस शरीर के माध्यम से जो मुझे सुख और दुख, मान अपमान ये सब प्राप्त होता है, ये सब क्षणिक है और ये सब भ्रमित करने वाला है। उसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक पॉइंट बताते हैं। पॉइंट ये बताते हैं कि अपने जीभ से, अगर हम लोग अपने दांत से अपने जीभ को काट दें, क्या हम किसी और को दोषी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि भाई आपकी वजह से मैंने अपना जीभ को काट दिया? हम स्वयं अपने जीभ से, अपने दांत से अपने जीभ को काट दिए, तो इसलिए सुख और दुख और मान अपमान हो रहा है। तो उस अवधूत ब्राह्मण बताते हैं कि इस मिथ्य अहंकार की वजह से हम मान अपमान ये सब सहते हैं, या सहते हैं या नहीं सह पाते। मगर जीव, जो जीव होता है, आत्मा है, इससे क्या लेना देना उसको? ये तो इस शरीर से परे है। और कल ही कोई भक्त एक सुंदर प्रश्न पूछे कि विदुर जी, जो विदुर है, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्यों भाग नहीं लिए? तब उत्तर में ये आया कि उनको दुर्योधन ने बहिष्कार किया, अपमान किया, तो वहां से विदुर जी चले गए तीर्थ यात्रा पर। फिर बाद में लौटे धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, ज्ञान तत्व देने के लिए। तो उसका दूसरा प्रश्न ये था कि प्रभु, अगर कोई अगर इस प्रकार से मान अपमान हमारा करता है, कोई अपमान करता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो भक्त ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। बोले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को उदाहरण देते हुए कहा कि जब अगर हमारे और अगर कोई हमारा अपमान करता है या कुछ कहता है, तब हमें इसमें विश्लेषण करना चाहिए कि शायद मेरे में ये अवगुण है, और इसके ऊपर हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि इस अवगुण को कैसे अच्छे गुण में परिवर्तन करें। मगर दूसरे भक्त के प्रति अगर कोई अपमान करता है, तब उसके लिए खड़ा होना चाहिए। फिर भक्त ने ये भी समझाया अवधूत ब्राह्मण के इस माध्यम से कि ये जो मान अपमान, ये जो अगर जब कोई अगर इस प्रकार से बहिष्कार हमें करता है, तो उसने सवाल पूछा कि क्या वो शरीर को किया कि आत्मा को किया अपमान? तब उत्तर है शरीर को किया। तो बोले, अगर शरीर को किया है तो शरीर में ही रहने दो, हम आत्मा में तो हुआ नहीं उसका कोई असर, क्योंकि आत्मा इससे परे है। तो उसी तरह से अवधूत ब्राह्मण इस प्रकार से उनका ये रियलाइजेशन और अनुभव है, उसमें उस मिथ्य अहंकार में किस प्रकार से भगवान कृष्ण को देखते हैं, हर चीज में, हर परिस्थिति में देखते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारा परिस्थितियां आती है, अनुभव होता है, उसी अनुभव में किस तरह से भगवान का हाथ देखें और ये समझे कि आत्मा इस शरीर से परे है, तो इसका कोई हमें शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये तो सब केवल मन के माध्यम से हो रहा है। इट इज जस्ट मेंटल स्पेक्युलेशन। आत्मा को बिल्कुल भी कोई उसका असर नहीं हो रहा। हम लोग अपने मन से ये हमारा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। प्रहलाद भी इसी प्रकार से अपने प्रार्थनाओं में कहते हैं कि हु इज माय फ्रेंड, हु इज माय एनिमी। ये सब मन की बातें हैं। अगर शुद्ध भक्त है तो वो सबको देखते हैं। क्या है वो श्लोक? भगवत पंडिता समदर्शिना, he sees everyone equally। ये इक्वल समदर्शन उनमें कैसे आता है? क्योंकि वो इस शरीर से परे है, अपने मन के संकल्प और विकल्प से परे है, अपने बुद्धि के माध्यम से, क्योंकि बुद्धि भगवान के ज्ञान के माध्यम से हो रहा है, शुद्ध भक्तों के माध्यम से हो रहा है, और ऐसे शुद्ध भक्तों के संवाद से हो रहा है, तब वो देखते हैं और कभी दूसरों को दोषी नहीं ठहराते हैं। जब परीक्षित महाराज उस बैल को देखते हैं कि उस बैल को मार दिए कली, तब उस बैल के पास जब आते तो बैल ने नहीं कहा कि इसने हमें मारा। बैल ने कहा, दिस इज बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस, मेरे वजह से मैंने कुछ ऐसा कुछ किया होगा। तो जब इस प्रकार की विचारधारा हो
तो हमारा समभाव होगा। भक्तों के संग में भी ऐसा समभाव होगा। हम सभी भक्त, हम चाहेंगे सभी भक्तों का संग करें, सभी भक्तों में कभी भी भेदभाव हम लोग नहीं करें। यस, आवश्यक है कि हमें ऐसे उन भक्तों का संग करना चाहिए जिससे हम लोग और इंस्पायर हो जाए, और शुद्ध भक्तों का संग करें जिससे हमें और आत्मा साक्षात्कार प्राप्त हो, और हमारे साथ में जो हमारे लेवल के हैं उनमें मित्रता हो, और जो हमारे से जो भी नए जुड़े हैं उनके लिए उनके प्रति कृपा हो कि किस प्रकार से भक्ति हम लोग उनको दें। तो ये विचार आवश्यक है, और ऐसा विचार, सुंदर विचार को में होना चाहिए। और ये हम लोग अवधूत के इस सुंदर प्रार्थनाओं से हम लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं। He is the support of the material cause। तो भगवान के यहाँ पर गुण का यहाँ पर टिप्पण किया गया है कि भौतिक जगत का कारण कौन है? इस भौतिक जगत का कारण कृष्ण है। ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। So he is the cause of all causes। भगवान सब में प्रवेश करते हैं। He enters into everything। अंधांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थ भगवान हर कण में भगवान उपस्थित है। भक्तगण इस प्रकार से देखते हैं। एक सुंदर प्रार्थना है ऋग्वेद में, जहाँ पर देवतागण विष्णु परमम पदम, इस प्रकार से वो विष्णु के हर विष्णु के उपस्थिति को हर चीज में देखते हैं, हर चीज में देखते हैं। चीज में भी, जो हम लोग चीज खाते हैं ना, उसमें भी भगवान का कृपा देखते हैं। कौन? भक्त लोग। कि कृष्ण के माध्यम से देखो, आहा पशु, उससे दूध, उससे मक्खन, उससे घी, उससे चीज, सब कुछ बन के आ रहा है। पानी हम लोग जल पीते हैं, रसो हम अपसु कौनते, पानी का स्वाद। एबिलिटी इन मैन, मेरे में अगर एबिलिटी है कुछ बोलने के लिए, कीर्तन करने के लिए, या कुछ उठाने के लिए, या बहुत अच्छी तरह से परिक्रमा करने के लिए, लोगों को लेके जाने के लिए, जो भी हमारे पास स्किल्स है, ये सब एबिलिटी कहाँ से आ रहा है? कृष्ण अपने विभूति योग में बताते हैं, इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम मी। The ability in man comes from me. The taste of water comes from me. The light of the sun and the moon comes from me। तो इस तरह से भक्त भगवान को कभी भूलते नहीं। He's seeing him everywhere। गजेंद्र भी इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। ओ, मैं तो बहुत बलशाली हूँ, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, बट मैं पानी में एकदम वीक हो गया, क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया, और फिर मैं देखा कि किस तरह से इस भौतिक जगत में हमारे जो बल वो क्षीण हो जाते हैं, और इस भौतिक जगत में जैसा आयु बढ़ता है और क्षीण हम लोग हो जाते हैं। कोई दूसरा जगह पर जैसे पानी में अगर मैं आ जाऊं तो उसमें और मेरा शक्ति क्षीण हो जाता है। तो हे कृष्ण, केवल आप ही के माध्यम से, आप ही सर्व कारण, आप ही के माध्यम से सब प्रकृति, सब कुछ आप ही के माध्यम से होता है। तो मेरा सारा शक्ति, मेरा सारा प्रार्थना आपके ऊपर हो। इस तरह से गजेंद्र प्रार्थना करते हैं, प्रहलाद भी इस तरह से प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भागवत में ऐसे सुंदर कितने वर्णन दिए गए हैं कि भक्त जो है हमेशा, भले वो मनुष्य योनि में हो या पशु योनि में हो, वो हमेशा देखते हैं कि कृष्ण उपस्थित है। और इस प्रार्थनाओं से हमें उदाहरण बताते हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती है, तो उसमें भक्तगण, हमारे जो सुंदर महाराज है, राजानाथ महाराज, वो भी बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि द टेस्ट ऑफ अ डिवोटी इज व्हेन ही इज पुट इनटू प्रोवोकिंग सिचुएशंस। उत्तेजित परिस्थितियों में जब भक्त को डाला जाता है, तब उसका टेस्ट होता है कि कैसे वो अपने आप को उस परिस्थिति में किस प्रकार से
धर्म के माध्यम से वो उस परिस्थिति का हल ढूंढे, he finds a solution by that. कई बार सवाल पूछते थे महाराज को, बहुत सारे महाराज को, कि महाराज आप किस प्रकार से, आप तो शादीशुदा नहीं हो, यू आर नॉट मैरिड, बट जो मैरिड कपल्स है उनका जो प्रॉब्लम्स है उसको आप ठीक तरह से कितना सुंदर तरीके से आप समझाते हैं, ऐसा कैसे है महाराज, हाउ इट इज, कृपया करके बताओ। महाराज बोलते थे, यू नो, जब युद्ध होता है तब आर्मी का जो टैंक होता है तो खाली सामने देख सकता है कि कौन मेरे सामने आ रहा है, उसको फिर फाइट कर सकता है, उसको कहते हैं फायर फाइटिंग। अपने मैनेजमेंट इसमें भी, ऑफिस में भी फायर फाइटिंग होता है। जो कॉज है, प्रॉब्लम का जो कॉज है उसको नहीं देखते हैं, जो उसका जो सिम्टम है उसको मारने को देखते हैं। अरे बाबा, कॉज को नहीं उड़ाओगे तो सिम्टम तो बारंबार आते ही रहेगा। यू हैव टू हिट द कॉज। तो कैसे होगा ये, जब आप युद्ध भूमि से बाहर होंगे हेलीकॉप्टर के ऊपर, जब हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के ऊपर होंगे तो हाँ देख सकते हैं, अरे वहां से वो टैंक आ रहा है, लेफ्ट से वो टैंक आ रहा है, राइट से वो टैंक आ रहा है, वहां से लोग आ रहे हैं, बस उधर फायरिंग करो एकदम। सो ही नोज एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर द प्रॉब्लम्स आर कमिंग, कहां से। तो उसी तरह से मैनेजमेंट मीटिंग्स में भी इसी का उदाहरण दिया जाता है कि डोंट डू फायर फाइटिंग, फायर है तो उसको फाइट करो, अरे आग आ कहां से रहा है उसको फिर बंद करो, मालूम पड़ा यहाँ से आ रहा है उसको बंद करो, फिर आग रहेगा नहीं। there is no need for fire fighting, just find the cause। जब उसी तरह से जब हर चीज में भगवान के सर्व कारण कारण, जब हम लोग भगवान को देखते हैं तब कृष्ण को कभी नहीं भूल सकता। और यही तो बताया गया था, युष्मर्तव्यम हि जात उचित, वो क्या है श्लोक भूल गया, बट जो शास्त्र यही समझाते हैं कि नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। अरे ये तो विरोधाभास है। इफ यू फॉरगेट कृष्णा, if you always remember Krishna, how you will forget Krishna? This is the whole picture। बद्ध जीव हर चीज भूल जाता है भैया। आज हम लोग सत्संग में है तो कृष्ण का स्मरण हो रहा है, जैसे ही सत्संग छूट गया कृष्णा, माया फिर पकड़ लेगा। कृष्णा भूल गया जी तो भोग वंश माया की चापटी अंदर। बिकॉज जो व्यासदेव भगवान कृष्ण को देखे थे उनके पीछे किसको देखा, माया शक्ति को देखा। तो माया शक्ति राइट बिहाइंड कृष्णा, कृष्णा हट गए, इसका हम लोग को सामना करना पड़ा, माया शक्ति। कृष्णा नॉट इन आवर लाइफ, माया इज इन आवर लाइफ। माया शक्ति भौतिक जगत, दुर्गा 3 त्रिशूल के साथ में खड़ी इस दुर्ग में हम लोग डाल दिए गए। ओ दुर्गा माता प्लीज फॉरगेट। तो यही है ना डायलॉग, वो क्या है, आई डोंट नो इफ आई टोल्ड। हमारे आई थिंक नागपुर के या नासिक के जो भक्त है पकड़ लेते हैं, उसने कहा था कि 9 दिन माँ दुर्गा, माँ दुर्गा। 9 दिन हम लोग कहेंगे माँ दुर्गा, और 10वें दिन कहेंगे क्या कहेंगे, 9 दिन माँ दुर्गा एंड 10वें दिन करेंगे लाल मुर्गा। 9 दिन माँ दुर्गा और 10वें दिन लाल मुर्गा। क्या चाहिए, राइट? इससे क्या, I mean, say fasting is supposed to be purifying your body। फास्टिंग, उपवास का अर्थ है कि हम शुद्ध हो, उपासना करें, वास करें नजदीक निकट किसका, भगवान कृष्ण का। तो ये है उपवास। अगर उस समय हम लोग क्या करते हैं, अपने डाइटिशियन, और हम लोग और पतले होना चाहते हैं, सब शारीरिक विचार है ये सब, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं है। माँ दुर्गा की तो बहुत सारा हम लोग इस प्रकार से आरती हाथ घुमाएंगे कि मसल ही आएगा, बट हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक बार हम लोग दामोदर आरती कर रहे थे, तो जैसे सनातन, जो सनातन को पालन करते हैं, तो बहुत सारे रिवाज है, अपने अपने रिवाजों की परंपरा चलती है।
सुंदर कीर्तन हो रहा, दामोदर आरती, और बाप रे, बहुत जबरदस्त कीर्तन। तो कीर्तन हो रहा था, फिर देखा सबको आरती करने दे दिए, सबका आरती हुआ। जो होस्ट था वो थाली लेके खड़ा था, वैसा घुमा रहा था भगवान कृष्ण की ओर। वो घुमाने का अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण मेरे मध्यम में है, मेरा जीवन का सारा, वो परिक्रमा का जो अर्थ यही है कि हम करते हैं गोवर्धन का या भगवान के जब मंदिर का हम लोग परिक्रमा करते हैं, तो इसका अर्थ ये है, ये प्रभुपाद जी का परिक्रमा करते हैं, इसका अर्थ ये है कि प्रभुपाद जी की जो वाणी है, भगवान कृष्ण की जो वाणी है, भगवान कृष्ण निरंतर भक्त, निरंतर मेरे जीवन के मध्यम में है। ही इज इन द मिडल ऑफ ऑल माय। तो इसीलिए हम लोग आरती करते हैं सर्कल में, ऐसा नहीं करते हैं, राइट से करते हैं। तो बेचारा वो कर रहा था, राइट से कर रहा था, और कीर्तन भी एकदम जबरदस्त चल रहा था। तो कीर्तन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो भी पता नहीं उसने किस रिवाजिक परंपरा में था वो, जब तक कीर्तन चलेगा तब तक मैं आरती ही घुमाता रहूंगा। तो आरती चल रही है, 5-10 मिनट की रुक जाता है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है। थक गया वो, गेम उठाए। फिर उसके बाद भगवान को कोई किसी को कीर्तन वाले बोले, भाई बेचारा वो थक गया, क्योंकि स्टार्टिंग स्पीड में था, उसके बाद थोड़ा टाइट होने लगा, फिर बाद में समझाया, फिर वो बेचारा फिर रुक गया। तो हमारे ऐसे सनातनियों कितने हम लोग की विधि है, कितने हम लोग विधान अपना अपना बनाया है, कोई अर्थ नहीं जानता है। भक्त वैष्णव के संग में जब आएगा तभी ये सब होता है, इट्स वेरी क्लियर कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि उनमें वो उदारता है, वो गलत नहीं समझाएगा, ही विल नॉट टेल यू समथिंग रॉन्ग। उसको कोई लेना देना नहीं है भैया, आपको केवल यही लेना देना है कि आप कैसे शुद्ध भक्त हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। और आप हमारे ऊपर कृपा, वो कृपा के पीछे पड़ा रहता है, he just wants mercy। जितना फूक उसमें कृपा का है, बस भक्त जीवन यही है, कृपा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कृपा चाहिए। कई भक्त लोग कहते हैं हाँ प्रभु हमको कृपा चाहिए प्रसाद के माध्यम से, तो आप कृपया करके 2 और गुलाब जामुन, नो प्रॉब्लम, और गुलाब जामुन लो। जैसे श्रील प्रभुपाद जी मटके में गुलाब जामुन रखते थे स्टार्टिंग में, जो भी वो हिप्पीज आते थे वो हैप्पी बनते थे, वो गुलाब जामुन खाते, तो वहां पे प्रभुपाद जी रखते थे, ये टू कीप दैट, और कोई रोक टोक नहीं, भाई खाओ जितना होता है ऐसा, तो खाओ। तो भक्त लोग भी कहते हैं थोड़ा भाई हमको भी कृपा दो, प्रसाद का। प्रसाद का कृपा है। सबसे जो चीज आपको पसंद नहीं है, जैसे जो भारतीय भक्तगण है, मैं जानता था, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम लोग गए थे उस समय, जयपता का महाराज जी, गुरु महाराज जब उनका बहुत सुंदर सेहत अच्छा था, तो वो सफारी लेके चलते थे, सफारी, साउथ इंडियन सफारी, नॉर्थ इंडियन सफारी, ऐसा करके सफारी होता था। तो उस टाइम साउथ इंडियन सफारी था, उडुपी, तिरुपति, गुरुवायूर, इस प्रकार का अच्छा सुंदर जो है यात्रा था। तो मेरा भी ऐसी टिकट हम बनाए थे, मैं यात्रा को फॉलो नहीं कर रहा था मैं, मगर उस यात्रा में मैं उसका आइटिनरी में मैं सही था, एक्सेप्ट केरला का, बट उडुपी और तिरुपति का आइटिनरी मेरा बराबर सटीक बैठा उसमें। तो एक बार किधर तो आई थिंक उडुपी या किधर तो पास्ता पास्ता बनाया था, पास्ता। तो उसमें से भारत के भक्त, रूस के भक्त दोनों बैठे हैं वहां पर। अब रूस के भक्त जो पास्ता डबल सर्विंग हो रहा था, और लाओ और कृपा दो। मगर हमारे बंगालीज और हमारे जो इंडियन भक्त का, मैं भी बैठा था, मुझे भी पास्ता हम लोग बोल रहे थे नहीं, हम अभी सब योगी बन गए, वैरागी हो गए, बहुत अच्छे। तो उसमें भी हम लोग, मैं उदाहरण क्यों दे रहा था, क्योंकि हम लोग उसमें भी देखते हैं कि कौन सा टेस्ट है, टेस्टी है, उसको हम लोग ले, भैया प्रभु आप उसमें जो और
बट अ डिवोटी, मैं एक भक्त को देखा, इज वेरी वेरी शांत, भक्त शांत होते हैं, तो जो भी उसका प्लेट में आ जाता है वो खा। कई बार हम लोग देखते हैं कि तुलसी गोविंद प्रभु एक बार क्लास बोल दे रहे थे कि प्रभु कभी 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 नमक कम हो जाता है, तो भक्त लोग इतने शाने हैं कि प्लेट में, भगवान का जो प्लेट होता है उसमें सब डालते हैं और फिर एक छोटा सा कोने में नमक भी डालते हैं कि भैया ये विचार करके कि अगर नमक कम है तो भगवान थोड़ा नमक लेके आप थोड़ा डालते रहिए। यही हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग जब प्रसाद लेते हैं तो हम लोग भी नमक डालते हैं। मगर मैं उस भक्त को देखा हुआ, अमेजिंग, उसमें तो इसलिए कहते हैं ना कि अच्छे शुद्ध भक्तों के संग करोगे तो वी गेट इंस्पायर्ड, हम लोग को वहां पर प्रेरणा मिलती है। तो पता है, जो भगवान का जैसा बना, हाँ, अगर जला हुआ है तो कोई नहीं खाएगा, भगवान भी नहीं खाते, जले हुए चीज को फिक्स रखेगा। अगर जो भी चीज में नमक कम है, नो प्रॉब्लम, वैसे ही खा लेगा। प्रसाद करके, so this is the mood. Anyway, so निरंजन महाराज भी, आप मालूम है, प्रभुपाद जी का एक शिष्य है निरंजन महाराज, जो सन्यासी है, वो कभी प्रभुपाद जी से मिले नहीं प्रैक्टिकल, का दीक्षा भी लेटर और टेप रिकॉर्डर से ही हुआ। वो जो है, उनका क्योंकि बीमारी है तो वो बिना नमक के खाते हैं, प्रसाद, आनंद लेते हैं। तो ऐसे वी शुड बी आल्सो दैट वे। तो एनीवे, समय का अभाव हुआ, तो रिफ्लेक्शन ऑफ फॉल्स ईगो, इसके ऊपर थोड़ा मैं और चर्चा कर रहा था। क्लास इसी के ऊपर था कि अहंकार, वित्तीय अहंकार में इस शरीर के माध्यम से जो भी मान अपमान सुख दुख जो भी है, उसमें भी कैसे कृष्ण को देखे। जैसे अवधूत ब्राह्मण ने हमको समझाया कि हम लोग आत्मा इस सब चीज से परे हैं, तो वी शुड बी डिस्टर्ब सो मच, और हर चीज में भगवान का हाथ को देखें। खास करके हमारे इस जो शरीर के माध्यम से जो भी उत्तेजित परिस्थितियां हैं, उसमें कृष्ण का, इससे हम लोग और दूसरे बद्ध जीवों से अलग दिखते हैं, और बद्ध जीव ये देख कर फिर उनमें प्रेरणा उत्पन्न होती है, यार ये तो बहुत फैंटास्टिक पर्सन, तो उसके गुण को फिर वो गुणगान करते हैं, और जब करते हैं तो एक वैष्णव का जब गुणगान करेगा तो कृपा तो आएगी ही उसको, फिर वो भक्त बनता है। तो इसीलिए समाज में वी आर द बेस्ट एम्बेसडर्स, और लोग का जो क्या बोलते हैं उसको, दूतावास लोग, वी आर द एम्बेसडर्स दिस हरे कृष्णा मूवमेंट। बट किधर भी हम लोग जाते हैं तो पीपल सी अस एज एम्बेसडर्स ऑफ ग्रेट वैष्णव कल्चर एंड एटिकेट्स। जब देखते हैं बोलते हैं वो ऐसा बनना है, वी बिकम द एग्जाम्पल्स ऑफ सोसाइटी। दैट्स व्हाई कोई अगर वैष्णव इस समाज में अगर है तो ये समाज के लिए सबसे बड़ा भेंट है, सबसे बड़ा भेंट। एक वैष्णव उस समाज में उपस्थित है, इस बिल्डिंग में एक वैष्णव उपस्थित है, इस कंपनी में एक वैष्णव उपस्थित है, तो सबको बेनिफिट प्राप्त होता है। ना किधर वो वैष्णव जो है उसमें कृपा रहती है, कुछ ना कुछ करके कृपा प्रदान करते हैं सबको। तो समय हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। पिता गौर प्रेमानंद।